SA 450 Evaluation of misstatements identified during the audit. Evaluate करना misstatements जो identify हुए हैं during the audit. SA 450 जो है deal करता है auditor की responsibility to evaluate the effect of identified misstatements on the audit or of uncorrected misstatements if any on the financial statements. तो audit evaluate करना effect of identified misstatements on the audit या फिर uncorrected misstatements if any on the FS. ऑब्जेक्टिव है इवेल्युएट करना इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑफ द डेट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम वही मिसस्टेटमेंट्स को अक्यूमुलेट करेंगे जो क्लियर अदर देन दोज दैट आर क्लियरली trivial. So auditor shall accumulate identified misstatements during the audit other than those clearly trivial. A misstatement may arise from variety of factors. Misstatement जो है variety of factors के वजह से arise हो सकता है. For example, inaccuracy in gathering or processing of data या फिर omission of amount of disclosure can result into a misstatement. The auditor shall accumulate misstatement identified during the audit other than those that are clearly trivial. A misstatement may arise from a variety of factors. For example, inaccuracy in gathering or processing data from which financial statements are prepared, inaccuracy in gathering or processing data from which financial statements are prepared, या फिर omission of an amount of disclosure can result in a misstatement. An entity has wrongly capitalized machinery repair expense amounting to 5 lakhs resulting in मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस को रॉन्गली कैपिटलाइज कर दिया है जिसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। ये एग्जांपल है मिसस्टेटमेंट का। So consideration of identified misstatement as the auditor progresses. The auditor shall determine whether the overall audit strategy and audit plan needs to be revised. Auditor को determine करने की overall audit strategy या audit plan को revise करने की ज़रूरत है। तो if the nature of identified misstatement and the circumstances of their occurrence indicate that other misstatement may exist when aggregated with other misstatements accumulated during the audit could be material. तो nature of identified misstatements और circumstances जो है ना circumstances उनकी occurrence के वो indicate करते हैं कि other misstatements exist कर रहे हैं जो when aggregated जब जिनको aggregate करेंगे उन misstatements को तो accumulated during the audit तो वो material होंगे। तो nature of identified misstatements and circumstances of their occurrence indicate that other misstatements may exist indicate करता है कि other misstatements जो exist करते हैं और जो when aggregated with other misstatement accumulated with the audit could be material. Nature of identified misstatements and circumstances of their occurrence indicate that other misstatements may exist that when aggregated with misstatements accumulated during the audit could be material. या फिर अग्रीगेट ही मिसस्टेटमेंट्स का accumulated ऑडिट अप्रोच करता है मटेरियली डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद aggregate of misstatements accumulated during the audit approaches materiality. aggregate misstatements का aggregate अप्रोच करता है materiality से 20। तो ऑडिटर जो है रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को एग्जामिन करने के लिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन ऑर्डर फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट। अंडरस्टैंड करना कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, परफॉर्म करो प्रोसीजर्स डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को एग्जामिन करने के लिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन ऑर्डर फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज फॉर मिसस्टेटमेंट, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसी रिक्वेस्ट जो है हम तब करेंगे जब जो है ऑडिटर का प्रोजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हो। सो द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू एग्जामिन अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन ऑर्डर फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर
परफॉर्म प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। परफॉर्म करो प्रोसीजर्स डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट की इन द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, एंड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अंडरस्टैंड करो कॉस्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। अब अगर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे जो है ना सॉरी, ऑडिटर की रिक्वेस्ट में मैनेजमेंट एग्जामिन कर लेता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस को, उसके बाद भी जो है ऑडिटर को परफॉर्म करने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन करने के लिए कोई मिसस्टेटमेंट कोई रह तो नहीं गया। सो इफ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एग्जामिन अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस अकाउंट बैलेंस and disclosure and corrected misstatements that were detected, so the auditor shall perform additional audit procedures to determine whether misstatements remain. Communication and correction of misstatements, तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है टाइमली बेसिस पे सारे मिसस्टेटमेंट्स जो अक्यूमुलेट हुए ड्यूरिंग द ऑडिट with the appropriate level of management. So the auditor shall communicate on timely basis all misstatements accumulated during the audit with the appropriate level of management unless prohibited by law or regulation. ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट करने हैं सारे मिसस्टेटमेंट्स टाइमली बेसिस पे क्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अनलेस जो है प्रोहिबिटेड हो बाय लॉ और रेगुलेशन। तो ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट को टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स। टाइमली communication of misstatements to the appropriate level is important as it enables the management to evaluate whether the items are misstatements and inform the auditor if it disagrees। और अगर करेक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑल मिस्टेक इंक्लूड दोज कम्युनिकेट बाय ऑडिटर एनेबल करता है एक्यूरेट अकाउंटिंग कौन सा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मैनेज उस ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट करने टाइमली बेसिस पे सारे जो भी मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेट हुए ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जब तक कि प्रोबिट ना हो। ये जो है मैनेजमेंट को अलाउ मतलब इससे जो है मैनेजमेंट बता पाएगी कि वो जो मिसस्टेटमेंट्स है ऑडिटर को लग रहे हैं वो सही में मिसस्टेटमेंट है या फिर जो है वो डिसएग्री करता है, तो वो भी इन्फॉर्म करेंगे मैनेजमेंट को ताकि उस पर एक एक्शन लिया जाए। और ये ऑल्सो हेल्प करेगा मैनेजमेंट को करेक्ट करने में मिसस्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स बनाएंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दे रखा, रीड करती हूँ मैं। So the auditor shall request management to correct those misstatement। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए मिसस्टेटमेंट। अब टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट जो है ना अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनेबल करेगा मैनेजमेंट को इवेल्युएट करने में कि वेदर द आइटम्स आर मिसस्टेटमेंट्स। It enables management to evaluate whether the items are misstatement, inform the auditor if it disagrees, and take action as necessary. Correction by management of all misstatements, including those communicated by the auditor, enable करता है management को maintain करने में accurate accounting books and records और reduce risk of material misstatement of future financial statements because of the cumulative effect of immaterial uncorrected misstatements related to prior periods। अगर management refuse कर देता है correct करने में कुछ या सारे misstatements को जो auditor ने communicate करें, तो ऑडिटर जो है ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट के रीज़न कि क्यों भाई मैनेजमेंट क्यों तुम जो है करेक्शन नहीं करना चाहते, और अंडरस्टैंडिंग लेगा अकाउंट में ऑफ इवेल्युएटिंग व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। और ये भी अब उस पे उसके रीजंस पे ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते, ये भी है ना जो ऑडिटर है अंडरस्टैंड करेगा इवेल्युएट करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री तो है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑफ द मिसस्टेटमेंट कमिटेड बाय ऑडिटर, द ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजंस फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शन and shall take that understanding into account when evaluating whether the financial statements as a whole are free from the material misstatement। अब इवेल्युएट करना है इफेक्ट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का। तो प्रायर टू इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर शेल रीअसेस मटेरियलिटी। ऑडिटर को मटेरियलिटी को रीअसेस करना है। रीअसेस मटेरियलिटी ऐसे 320 whether it remains appropriate in the context of the entity's actual financial results। So prior to evaluating अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करने से पहले ऑडिटर को जो है रीअसेस करनी है मटेरियलिटी determined in accordance with SC 320 to confirm whether
It remains appropriate in the context of the actual financial results. अब ऑडिटर जो है डिटरमाइन करेगा वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो है मटेरियल है इंडिविजुअली या एग्रीगेट में। अब इस डिटर्मिनेशन को करने के लिए ऑडिटर को कंसिडर करना है साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट both in relation to ABCD and financial statement as a whole and the particular circumstances of their occurrence या फिर effect of uncorrect misstatement related to prior periods on the relevant ABCD and the financial statement as a whole। तो प्रायर पीरियड का अफेक्ट या फिर नेचर और साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट एबीसीडी को लेकर भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को भी। तो ये जो है उसको डिटरमाइन करना है, कंसिडर करना है। तो नेचर ऑफ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट बोथ इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर एंड द फाइनेंशियल एलिमेंट इज होल एंड पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द occurrence related to prior periods relevant and the financial statement whole। अब कम्युनिकेट करना विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो ऑडिटर जो है कम्युनिकेट करेगा विद दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट रिगार्डिंग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और उसका इफेक्ट इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट जिस मे हैव द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन से आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट देन करेक्टेड रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स भी। Now, data representation from management regarding effects of uncorrected misstatement। तो ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से या जहाँ भी अप्रोप्रिएट हो दोस्त चार्ज गवर्नमेंट से कि वो बिलीव करते हैं इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट जो इमटेरियल है इंडिविजुअल और एग्रीगेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में और समरी ऑफ सच आइटम्स शैल बी इंक्लूडेड इन अटैच टू द रिप्रेजेंटेशन। सो द शेल ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट where appropriate those charged with the governments where they believe the effects of uncorrected misstatement immaterial individually aggregate to the financial statement whole and summary of such items shall be included इन और अटैच टू द रिप्रेजेंटेशंस। अब डॉक्यूमेंट करना मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या इंक्लूड करेगा, जो भी अमाउंट्स मिस स्टेटमेंट्स की क्लियरली ट्रिवियल है, क्लियरली ट्रिवियल से कम है। सो द अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स वुड रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल, द अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल। ऐसी हम या फिर मिस स्टेटमेंट्स accumulated during the audit when they, whether they have been corrected या ऑडिटर का conclusion as to whether incorrect measurement on the basis of the conclusion। okay, amount below which misstatements would regarded as clearly trivial, misstatement accumulated whether they have been corrected या auditor का conclusion as to whether uncorrected misstatements are material individual in the basis of that conclusion।